Now, today we are going to start with the first type, and that is X elimination type. Now, what is this X elimination type? See, it is not a property. Using the rest properties which I had explained you till now, I am going to explain you this particular type of sum, okay, which is called X elimination type sum. Now, what is X elimination type? See, note down here, everyone. In X elimination type, you will have an integrand which will be always product of two functions. One will be exactly X, other function will be such that after, just note down, that after applying any one of the property, if after applying property, if after applying property fx remains same, it means it is X elimination type. Okay, it is X elimination type. Else apply by parts. Now what is the meaning of this? Everyone note down here. इसका मतलब क्या है, एक बार ध्यान से एक सम से मैं तुम लोगों को समझाता हूं, ध्यान देना एक बार. तो सबसे पहला चीज एक्स एलिमिनेशन टाइप मतलब क्या है, बट जस्ट नोट करना, मैं एक सम से क्लियर करता हूं. Now let us take one example. Suppose we have I equals to 0 to pi x cos square x. जैसे ये एक सम है, ठीक है. नाउ कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर सम इस एक्स एलिमिनेशन टाइप के कैटेगरी में वो बिलोंग करता है. देखो नाम से पता चल रहा है कि एक्स को एलिमिनेट करना है. ओके, क्या करना है? एक्स को एलिमिनेट करना है, नाम से पता चल रहा है. बट अगेन द क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन इंटीग्रेंट is an X elimination type sum. Just note down. Let us apply the property. I know that in your mind it is coming. The first thing which is coming in your mind is why not to apply by parts. But let me make this point clear that if you apply by parts, sum will become very lengthy. Let's apply property first, and then I'll explain you how to understand that it is an X elimination type sum. Listen here. If you applying 0 to a property, that is 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. See, let us apply this 0 to a का property है. अगर मान लो मैं यहाँ 0 to a का property apply करूं, तो यहाँ पे जहां पे x दिख रहा है, x के जगह पे क्या रिप्लेस होगा बताओ तो. तुम लोगों को पता है कि 0 to a के प्रॉपर्टी में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो सेम रहता है. बस चेंज क्या होता है, जहां पे x है, x के जगह पे हम लोग क्या चीज से रिप्लेस करते हैं? a माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सम में जो अपर लिमिट जो है दैट इज a की जगह पे क्या है? पाई. तो हम लोग x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? पाई माइनस एक्स. इफ आई रिप्लेस एट द प्लेस ऑफ x पाई माइनस एक्स, what you'll get? You'll get 0 to pi minus x. Now see, what is cos pi minus x? Now again I repeat, what is cos pi minus x? Cos 180 minus x is pi minus x means it lies in which quadrant? It lies in second quadrant. 180 minus x means second quadrant. Second quadrant में cos function क्या होता है? Negative होता है. Pi means multiple of 2 into 90, मतलब 2 into 90 मतलब even है. Even है तो cos रहेगा and write down x. So we find that cos pi minus x is minus cos x, and minus cos x का whole square will be how much? Plus cos square x. So we have I equals to 0 to pi minus x into cos square x. Everyone have a look here. Now जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखवाया है, तुम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्स एलिमिनेशन टाइप है. देखो
अगर आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, 0 to a का या a to b का जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, अगर अप्लाई करने के बाद अगर fx सेम रह रहा है, remains same, it means that it is x elimination type. Why is it so? Why ऐसा क्यों है कि fx जो है, देखो x into fx, x के साथ जो भी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है, अगर 0 to a तो 0 to a का प्रॉपर्टी लगा, अगर a to b है तो a to b का प्रॉपर्टी लगा ना। अगर मान लो fx जैसा है वैसे ही आ गया, देखो जैसे यहाँ पे cos square x था, cos square x आ गया, अगर सेम रह जाता है, इसका मतलब ये किस कैटेगरी में ये सम फॉल करता है? इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी x एलिमिनेशन टाइप। नाउ अगेन व्हाई, ये तो क्लियर हो गया कि चलो ठीक है fx सेम रहना चाहिए, बट अगेन व्हाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्यों ऐसा है, क्यों सेम रहने से वो x एलिमिनेशन टाइप की कैटेगरी में फॉल करता है इक्वेशन। लिसन हियर, बिकॉज़ if I add both the equations, now if I add both the equations, we'll find that I plus I becomes how much? 2i. I plus I becomes how much? 2 into I. 0 to pi, 0 to pi, इस फंक्शन को और इस फंक्शन को ऐड करना, मतलब x cos square x pi minus x cos square x को ऐड करना, इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो फिर क्या होगा? cos square x कॉमन आ जाएगा, cos square x कॉमन आ जाएगा, और एंड वी आर फाइंडिंग दैट x गेट्स कैंसिल्ड। सी मैंने टॉपिक का नाम ही लिखा था x एलिमिनेशन टाइप, तो क्योंकि x कैंसिल हो गया, x एलिमिनेट हुआ, ये क्यों पॉसिबल है बताओ तो? बिकॉज अगर ये cos, देखो x के साथ जो फंक्शन था वो चेंज नहीं हुआ, तभी तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया ना। ये कॉमन पॉसिबल कैसे हुआ? बिकॉज x के साथ जो भी फंक्शन था वो सेम था, सेम रह गया देखो, और मैंने कॉमन ले लिया। अगर मान लो सपोज ये cos square x चेंज हो जाता और ये sin square x हो जाता सपोज, तो एक बात बताओ, क्या हम लोग कॉमन ले पाते? कॉमन नहीं ले पाते ना, क्या हम लोग कॉमन ले पाते दोनों में से? अगर कॉमन नहीं ले पाते तो क्या x कैंसिल हो पाता? नहीं। अगर x कैंसिल नहीं हो पाता, इसका मतलब ये x एलिमिनेशन टाइप नहीं है। फिर कैसे करना होता है हम लोग को? तब हम लोग को x into fx में हम लोग को बाई पार्ट्स का मतलब क्या होता है? यूवी रूल अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? और यहाँ पे देखो एक बार, अगर नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम इस सम को बिना x एलिमिनेशन के भी हम लोग कर सकते हैं? यस एब्सोल्युटली, क्यों नहीं? हम लोग यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं सम को, ठीक है? तो बट ये x एलिमिनेशन टाइप से मैंने किया जहां पे x को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन करने के बाद 2 राइट में आ गया, पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, सो वी आर गेटिंग पाई बाय 2, 0 to pi cos square x dx, and now you can easily integrate cos square x by writing cos square x as 1 plus cos 2x whole thing by 2, and you can integrate. So everyone copy down till here first. Okay, everyone, do you have anything to ask? अगर कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा है तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, यू कैन आस्क। ये जो टॉपिक जो मैंने समझाया एक्स एलिमिनेशन टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्लियर होना चाहिए। ओके
तो कोई डाउट है इसमें, एनीवन? cos square x को इंटीग्रेट करने के लिए वी कैन राइट इट एज 1 plus cos 2x whole thing divided by 2. Keep this 2 outside, so you'll get pi by 4. And then we can integrate 1, where integration of 1 dx is how much? X cos 2x का sin 2x by 2. हाँ, तो ये पाई पाई बार लिया था, ये 2 भी तो है ना डिनोमिनेटर में, ये 2i था, तो i क्या हो जाएगा? पाई बाई 2. ठीक है, फिर ये 2 बाहर है तो 2 2 ये 4 हो गया, पाई बाई 4. Once put upper limit, then you put lower limit, which will be 0. Now sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi सब 0 होता है, तो बचा क्या? पाई. Pi into pi by 4 is pi square by 4. This is what we have on the right hand side. Okay, I'm giving you one more sum of same kind, same type, that is x elimination type. Okay, just everyone try once. So this is very easy way to understand कि ये x elimination type है या नहीं. ठीक है, मैंने जो बताया तरीका, उस तरीका को फॉलो करेगा तुम लोग. So number 24 from Mare Silva, it is 0 to pi x tan x divided by sec x plus cos x. Okay, and you have to show that it is equals to pi square by 4. Try once everyone. So now, just one question before, I mean, you'll proceed, don't no problem for that. Just tell me whether it is X elimination type sum or not. Yes or no? Tell me, just this much. Because you're finding that X, हाँ, because X के अलावा जो बाकी फंक्शन है, वो जैसा है वैसे रह जा रहा है. तो इससे होता क्या है? अगर वो सेम रह जा रहा है, तो हम उस fx वाले पार्ट को कॉमन लेंगे, x कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? नाउ tan pi minus x is minus tan x, फाइन. यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस कॉमन लेके वो कैंसिल हो जाएगा. सो डोंट वरी, इट इज एक्स एलिमिनेशन टाइप 1. हरियर कंप्लीट फर्स्ट.
So if we add both the equations, we'll get 2y on the left hand side and 0 to pi. If I add both the functions, we are finding that after taking tan x by sec x plus cos x common, x will get eliminated and then you'll get tan x by sec x plus cos x. Keep pi outside and 2 को लेफ्ट से राइट में लेके आ जाओ, तो i हो जाएगा pi by 2 0 to pi tan x by 1 plus tan x by sec x plus cos x. Now see, after this we are not able to understand क्या करना है, तो you know that सबसे best है सबको sin cos में convert कर दो. If I express all the functions in terms of sin cos, you will get sin x divided by 1 plus cos square x. All right everyone? tan को sin by cos लिखना, sec x को 1 by cos x, LCM लेके इतना आ जाएगा. Now can you tell me इसके बाद क्या करना चाहिए? Yes? Substitution, yes. नहीं, cos x को t ले लो बस. cos x को डायरेक्ट हम लोग t ले लेंगे. क्यों? क्योंकि dx of cos x is minus sin x. So इस बार याद रखना तुम लोग एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ये तुम लोग अभी रिटर्न ले लो. मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ अभी मैं बोल दे रहा हूँ, एग्जाम में या तो 0 to a वाला प्रॉपर्टी आएगा जिसका आंसर pi by 4 होता है, वो भी आ सकता है 2 मार्क्स का एक, और एक आएगा x एलिमिनेशन वाला. दैट दिस इज 110% श्योर. तुम देख लेना एग्जाम में आएगा, अभी नोट करके रख लो, पेपर में देख लेना तुम. उसके बाद when the value of x is 0, let us change the limit. When the value of x is 0, the value of t is how much? Cos 0 is how much? 1. When the value of x is pi, then the value of t becomes how much? You know, cos pi is minus 1. So it will become I equals to 0 की जगह पे 1 और pi की जगह पे minus 1. Clear? आगे pi by 2 है. उसके बाद जहां पे cos x है वहां पे t लगा देना और sin x कैंसिल हो गया. ये जो माइनस है इसको बाहर ले लेना. Then we find that integration of 1 by 1 plus t square is tan inverse t. Put upper limit once at the place of t and then lower limit. You know that tan inverse of minus x is minus tan inverse x. Am I correct? Tan inverse of minus x is minus tan inverse x. You've seen this in inverse trigonometry. Tan inverse 1 is pi by 4. Minus pi by 4 becomes minus 2 pi by 4, which is minus pi by 2 into minus pi by 2 is pi square by 4. Now this is what we have on the left hand side, right hand side. Okay, copy करो. So ये हो गया तुम्हारा x elimination टाइप का सम कंप्लीट. अब हम एक प्रॉपर्टी देंगे, उसके बाद हम एक और सम बताएंगे. Then the chapter is almost खत्म ही है, बस तुम लोगों को सम्स करना पड़ेगा. लेकिन उसके बाद जो मैं सम कराऊंगा वो बहुत बड़ा सम. Done everyone? Next. Now listen here. This sum number 28 and 29 is also very, very important sum.
It's based on the sums from number 1 to 17. But in number 28 and 29, मैं अभी हिंट भी दे देता हूँ. 28 and 29 में कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा. When I say substitution, you've got 6 options. That is sine, cos, tan, sec, cosec, and cot. Now, can anyone tell me in 28 which is the function we have to substitute at the place of x so that it becomes very simple? Anyone? Exercise 16C का बात कर रहा हूँ मैं. 16C properties. So I'm writing 2 questions on the board. So I want everyone to just think for a while and then you'll answer. पहले एक कोई आंसर नहीं करेगा. पहले मैं सबको टाइम दूंगा सोचने के लिए. उसके बाद तुम लोग इसका आंसर देगा. 28. So everyone think and just tell me which functions we have to substitute here at the place of x और इसमें क्या substitute करना चाहिए. सोच के बताओ. Yes. Now you can answer. Tell me. x equals to tan x मत बोलो. x equals to tan t. x है तो tan t. तो या तो tan t, when you say tan t, you can also substitute cot t. Clear? You can either substitute tan t or cot t. So because 1 plus tan square t is sec square t, so it will get reduced to the sums which you have in question, which you have, that is number 11. If you put at the place of x tan t, this particular sum will become same as number 11. Okay? मतलब all the sums from 1 to 17, and then the answer is same, pi by 4. Same cot put करो तो भी वही चीज आएगा. Make sure that you don't forget into changing the limit also. Changing the limit, okay? Because जब substitution करते हैं limit को change करना होता है. Next 29. So यहाँ पे हम लोग को या तो x के जगह पे a cos t, और ये तुम लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए थे इस टाइप का एक्सप्रेशन में हम लोग या तो a cos t या a sin t, बिकॉज a पुट करेंगे a sin t तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 minus sin square t is cos square t. So this is the way how we determine. So we have got 2 sums and these 2 sums are very very important. Please make sure. जब मैंने बोला मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, कुछ सिलेबस को देख के मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में वो आ सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटी में देख के बोल रहा हूँ. So these 2 sums are very very important for exam. Next, now copy down and try both these sums at home. Now write down the next property, that is property number 7, I guess, because we have done till number 6. 6 was the last property. Now today we'll start number 7. Property number 7. It is 0 to 2a fx dx equals to 0 if f of 2a minus x is equals to minus fx. It's equals to 0 to a twice fx dx if f of 2a minus x is equals to plus fx. Everyone copy down, then I'll explain you the application. Copy down first.
Everyone copied on this property. And after copying this property, मैं देखना एक बार नंबर 31 बता रहा हूँ, एक बार 31 को ध्यान से देखना और इसके नीचे लिख लेना तुम लोग, यहाँ पे लिखो एक बार प्रॉपर्टी के नीचे, लिखने के बाद नीचे लिखो एक बार, दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड टू चेंज द लिमिट, राइट डाउन, दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड टू चेंज द लिमिट. Okay, write down once again. This property is applied to change the limit. Now, what is this to change the limit? Listen. Question number 31. Please mute your device, जो भी है. एक बार mute कर लेना. Question number 31 देखना एक बार. So the question is 0 to pi sin square x into cos cube x. So this is the question and you have to show that it is equals to 0. Okay, we have 0 to pi sin square x cos cube x and you have to show that it is equals to 0. तो ध्यान देना एक बार. Now सबसे पहला चीज, ये सम को मैं तुम लोगों सबको बोलूंगा पहले एक बार 0 to a का प्रॉपर्टी अप्लाई करके करो. Everyone solve this particular sum by using 0 to a का प्रॉपर्टी and check whether 0 to a का प्रॉपर्टी यूज करके सम हो रहा है या नहीं. करो तो एक बार सॉल्व everyone. This is equation number 1 and now try everyone. Okay, ठीक है. Everyone try first. देखो 0 to a का प्रॉपर्टी लगा के बहुत आसान से हो जाएगा ये सम. मतलब अगर हम यहाँ पे 0 to a का प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 to pi, आगे माइनस आ जाएगा. देखो 2. If you add both these in the integrand, like I plus I क्या हो जाएगा 2i और ये कैंसिल हो जाएगा. ये हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस n कॉमन आ गया तो इस पूरा चीज को हम लोग i से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं. So I equals to minus I, that is 2i equals to 0. So what is the value of I? It is 0. This is clear everyone? I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ना अब देखना एक बार मैं इस सम को कैसे बिना 0 to a का प्रॉपर्टी लगाए हुए भी करूंगा. देखना एक बार ध्यान देना. Now first of all try to understand this property here everyone. This property is only applied when the lower limit is 0. Upper limit is in the form 2 into a. It has to be multiple of 2. Please note down. It has to be a multiple of 2. मतलब 2 into a के फॉर्म में होना चाहिए. 3 into a के फॉर्म में नहीं. 4 into a के फॉर्म में नहीं. It has to be in the form 2 into a. तो हम क्या करेंगे देखना एक बार इस प्रॉपर्टी में, इस फंक्शन में जहां पे x है वहां पे हम लोग 2a minus x रिप्लेस कर देंगे. और रिप्लेस करने के बाद अगर मान लो इसका आंसर minus fx आ जाता है, if the result is equals to minus fx, then directly write down 0. If it is equals to plus fx, so what are we going to write down? Just note down 0 to 2a जो है ना, इसका जो 2 है वो आगे मल्टीपल इंटीग्रेंड के आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा और ये 0 to a हो जाएगा. ठीक है, अब ध्यान से देखना इस सम में कैसे हम अप्लाई करेंगे. नाउ अभी मैंने बताया तुम लोगों की अपर लिमिट 2a के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पाई है, 2 into ऐसे तो फॉर्म में है नहीं. तो हम क्या करेंगे, पहले पाई को आई विल बी राइटिंग पाई एज 2 into pi by 2 फर्स्ट. ठीक है, मैं पाई को क्या लिखूंगा 2 into pi by 2. इसके बाद ये जो फंक्शन है इसको fx लेट ले लेना और लेट लेने के बाद जहां पे x दिख रहा है ना, x के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, चेक वंस इन द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू चेक 2a minus x.
x के जगह पे 2a माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे 2a, a क्या है बताओ तो, 2a, a का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, 2a is pi by 2. So I'm going to replace at the place of x 2 into pi by 2 minus x, मतलब जहां पे x है वहां पे हम लोग 2 pi by 2 minus x रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं x के जगह पे 2 pi by 2 minus x रिप्लेस कर दिया मैंने, तो देखना एक बार, 2 2 कैंसिल हो गया, then we have sin square pi minus x, cos cube pi minus x. What is sin pi minus x? Just can you tell me? What is sin 180 minus theta? It is sin theta itself. मतलब ये हो जाएगा sin square x. What is cos pi minus x? It is minus cos x. And minus cos x का whole cube क्या हो जाएगा? Minus cos cube x. Now we are finding that this function is equals to what? Fx here. See, minus fx. So we are finding that f of 2a minus x is equals to plus minus fx. So check करो एक बार, वो जो प्रॉपर्टी अभी मैंने दिया था कि अगर f of 2a minus x minus fx होगा तो कौन सा कंडीशन अप्लाई मतलब होगा, बताओ तो आंसर 0 होगा या क्या होगा, बताओ क्या होगा, दो ऑप्शन है ना, तो क्या होगा बताओ तो इसमें, so I will be equals to how much, 0. Check the property once. If f of 2a minus x, I repeat, if f of 2a minus x is equals to minus fx, then what is the answer of this integral? It is equals to 0 directly. So copy down this method also everyone. And if you have not understood, please let me know. If you have not understood, एक बार मुझे बताना कि तुमको समझ में नहीं है और क्या समझ में नहीं है, एक बार पॉइंट करो, ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। पाई था, 2 पाई नहीं था, तो मैंने पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में लिखा, क्यों, 0 टू 2a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। इस पार्ट को मैंने fx ले लिया और जहां पे x है वहां पे 2a माइनस x रिप्लेस कर दो, 2 2 कैंसिल हो गया। ये वैसे तो तुम यहां भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन तुमको 0 टू 2a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसको सिंपलीफाई करके क्या आया, माइनस fx. So since f of 2a minus x is minus fx, so the result of this integrand is 0. Copy down. Yes. Yes, tell me. हाँ हाँ, आ सकता है, आ सकता नहीं, वैलिड नहीं लिखा रहेगा, जैसे मान लो ऐसे लिखा रह सकता है। show this equals to this, hence solve this equation, ऐसे बोल सकते हैं। समझ में बात मेरा, show this hence prove this, मतलब इसको प्रूव पहले इसको प्रूव करो और इसको यूज करके ये प्रूव करो, मतलब हमको ये प्रॉपर्टी लगाना है, ये नहीं 0 टू 2a वाला, इस तरह से आ सकता है। Okay, everyone. I hope everyone is copied. Now next I'll be giving you, just note down. देखो ध्यान से एक बार नोट करना, ठीक है। देखते कितने लोग ये कर पाते हैं। देखो तुम लोग ये तो कर पाएंगे, 0 टू पाई बाई 2 sin to the power 4x by sin x whole to the power 4 plus cos x whole to the power 4. If I ask you to prove this, everyone, I know that 100% सभी को ये वाला सम कर लेगा, बस इसमें है क्या, 0 टू का प्रॉपर्टी लगाओ, ऐड कर दो, आंसर बना जाएगा। बट आई मीन सॉरी, पाई बाई 2 होता था, लेकिन यहाँ पे मैंने सम को चेंज करके पाई दे दिया। अब अगर पाई दे दिया तो एक बात बताओ मुझे, एक बार ये सबको प्रूव करके दिखाओ, लेट मी सी कितने लोग कर पाते हैं ये वाला सम। इट्स नॉट 0 टू पाई बाई 2, इट्स 0 टू पाई। नाउ यू डू दिस सम। Yes.
एग्जाम में इस तरह का समझा सकता है इस बार। ठीक है, इतना हाई लेवल तो नहीं आया क्योंकि बहुत लोग कर ही नहीं पाएगा, बहुत लोग लगेगा एग्जाम में रॉन्ग है क्योंकि इन लोगों का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा बहुत लोगों का। लेट मी सी कौन कर पाता है। यस, हो गया, वेरी गुड। डोंट टेल आंसर, आई मीन प्रोसेस, अभी रुक जाओ। गुड। एक्चुअली ये सब ना तुम देख लेना, मैं तुमको इस बात का गारंटी देता हूँ। मतलब तुम जिसका जिसका सिलेबस कंप्लीट है, लिख लिख के देता हूँ मैं अभी, तुम लोग दे देना उसको। पहले तो वही बोलेगा कि सम रॉन्ग है, बोलेगा कि पाइलेट हो गए यहाँ पे, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है प्रॉपर्टीज का, यूजेस का। गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पे देखो एक बार, सी ऑब्वियसली, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो मैं सम नहीं देता सपोज तुमको अभी, और मैं इतना जैसे सिस्टमैटिक वे में आया तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, बट नहीं भी देता तो तुम क्या करता? जीरो टू ए का प्रॉपर्टी लगाता पहले तुम, है कि नहीं? बट लगाने के बाद तुम देखता कि सेम चीज वही आ रहा है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में जरूर एक बार ये दिमाग में आता कि नहीं, लिमिट चेंज करना चाहिए मुझे। तुम्हारे दिमाग में आता ना कहीं तो आ ही रहा है ना, पाई बाई टू होता तो हो जाता। मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है, लिमिट चेंज करने का बात। तो लिमिट चेंज करने के लिए मैंने अभी लास्ट जो प्रॉपर्टी दिया, दैट इज यूज्ड टू चेंज लिमिट ओनली, मेक श्योर एवरीवन। So what are we doing? What are we going to do in this sum is, we are going to write pi as 2 into pi by 2, and then we are going to check this prop function। जो प्रॉपर्टी मैंने दिया है उस प्रॉपर्टी को लेके यूज करके इस फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। Now, wherever we find x, at the place of x, we have to write down 2a minus x. Two gets cancelled, we are getting pi. So sin pi minus x क्या होता है? Sin x. Cos pi minus x is minus cos x, लेकिन पावर में 4 है, तो रिजल्ट cos x ही होगा। Cos x whole to the power 4. This is what? Plus fx. So since we are finding that f of 2a minus x is equals to plus fx, so I will be equals to how much? 0 to a, note down everyone, I will be, sorry, 0 to a, that is 0 to pi by 2. This 2 will come in multiple form, आगे product form में आ जाएगा, and this is sin x whole to the power 4 by, mark it as equation number 1, or you had it initially mark this as 1, mark this as 2, and then you know that what you have to do. Apply 0 to a का property, जो आएगा add कर दो, अब तो समझ में आ गया क्या करना। Okay, now next sum। मतलब मैं तुम लोग को एक सम के लिए रेडी कर रहा हूँ, एक सम के लिए, ये सब चीज एक्चुअली एक सम करने के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो कि ये सारा सम का एप्लीकेशन रहेगा उस समय, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सम खत्म डेफिनेटली ना। एक और सम मैं कराऊंगा पहले, उसके बाद हम लोग
पहले कॉपी कर लो फटाफट, इसको कंप्लीट कर लो। थिंक सबका कंप्लीट हो गया सब। नाउ नेक्स्ट। Now, it's not here. Just let me write down the question. So suppose we have to prove zero to pi by 2 log sine 2x dx is equals to 0 to pi by 2 log sin x dx। तुम लोगों को ये अजीब सा लग रहा होगा ये क्वेश्चन कि कैसे यहां पे 0 टू पाई बाई 2 है, यहां पे 0 टू पाई बाई 2 है, यहां पे log sin 2x है dx और यहां पे log sin x dx, कैसे सेम हो सकता है? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। इट्स करेक्ट। नाउ सी कैसे सेम हो सकता है। नाउ सी इस प्रूफ पार्ट को एकदम बहुत अच्छे से देखना पहले तुम लोग, इस प्रूफ पार्ट को समझ में आया तो लिसन वेरी केयरफुली। नाउ आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, I am taking left hand side, which is log of sine 2x dx. Now let me make this point clear that you don't have to integrate this and get the result. Clear? You don't have to integrate this separately and get the result. And you have to say that, I mean, and then you can say that as both the results are equal, hence it is equal. नहीं वैसे नहीं करना है. We have to take this integrand and you have to show this directly. इस इंटीग्रेंड को लेके डायरेक्टली ये शो करना है, इस बात को नोट करना था। ओके, तो ध्यान देना। सबसे पहला चीज मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से यहां पे 2x दिख रहा है, यहां पे x दिख रहा है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में 2x को सब्स्टिट्यूट करने का ही लॉजिक आया, और कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा लॉजिक दिमाग में ये आ सकता है, सुनना, दूसरा लॉजिक दिमाग में ये आ सकता है कि क्यों ना 0 to a का प्रॉपर्टी लगाए, बट 0 to a का प्रॉपर्टी लगा के कुछ नहीं होगा, जो फंक्शन है वापस वो सम फंक्शन रिपीट कर देगा। दिखा देते हैं तुम लोग को, जहां पे x है वहां पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स, 2 into pi by 2 is pi, 2 into x is 2x. What is sine pi minus theta? Sine pi minus theta is sine theta. एक बात बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में 0 to a का प्रॉपर्टी आता भी कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज इसका रीजन यही है कि जो फंक्शन था वही फंक्शन वापस आ जा रहा है। इसलिए मैं इस समय क्या करूंगा देखना एक बार, पहले मैं प्रूफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे 2x को सब्स्टिट्यूट करूंगा पहले। लिसन एवरीवन, मैं ये सम को यहाँ बोर्ड पे कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन करके कॉपी करके खुद से सम को एक बार करेगा, खुद दिमाग लगा करके। समझ में आया तो बात? तो ध्यान देना, एक बार पहले देख लो। सो dx becomes how much? हाफ dt। उसके बाद हम लोग को लिमिट चेंज करना पड़ेगा। कैसे? When the value of x is 0, the value of t becomes how much? The value of t becomes 0. When the value of x is pi by 2, at that time the value of t is how much? 2 into pi by 2 is pi. So we find that this integrand becomes 0 to become 0, pi by 2 becomes pi, 2x के जगह पे t रिप्लेस कर देना, और dx के जगह पे हाफ dt रिप्लेस कर देना, मतलब हाफ बाहर आ जाएगा, dt। ऑल राइट, नेक्स्ट।
उसके बाद हम वो देख रहे हैं कि यहाँ पे log sin t dt है, यहाँ पे log sin x dx है. You know that you have a property that you can change the function का वेरिएबल को हम लोग किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं. मतलब I can write log sin t dt as log sin x dx and you must mention the property which you are using. जो property यूज कर रहे हैं हम लोग वो यहाँ पे लिखना चाहिए कि a to b ft dt is same as a to b fx dx. मतलब a to b ft dt is same as a to b fx dx. इसके बाद ये जो पाई है, इस पाई के जगह पे, क्योंकि अब मुझे दूसरा चीज दिख रहा है कि चलो फंक्शन तो मैच कर गया, लिमिट तो सेम नहीं है ना. अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, मैंने बताया था कि लिमिट को चेंज करने का एक प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हम पाई को क्या लिखेंगे, पहले 2 इंटू पाई बाई 2. और इस फंक्शन को लेट लेकर के एंड आई विल चेक वेदर f of a 2a minus x is equals to what? We are finding that f of 2a minus x, 2 gets cancelled, sin pi minus x is how much? Sin x. So f of 2a minus x is the, what? The function itself. So as f of 2a minus x is equals to function itself, so we can say that I equals to, ये जो 2a है ये 2 आगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा और ये 0 to a हो जाएगा. 2 gets cancelled and we are getting I equals to 0 to pi by 2 log sin x dx. This is what we have on the right hand side, henceforth. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अब आगे मैं जो भी सम्स करने वाला हूँ और जो सबसे डिफिकल्ट सम है इस पूरा चैप्टर का, डेफिनेट इंटीग्रल का अगर बोलोगे तो सबसे डिफिकल्ट सम जो मैं आज एक कराने वाला हूँ इसके बाद, वो इसी पे बेस्ड है. और तुम देखना आधा से ज्यादा जो सम है उसमें यही है, ये है और एक्स एलिमिनेशन है, मतलब दो सम का कॉम्बिनेशन है. तो एक बार कॉपी करो फटाफट. हाँ बोलो. हाँ बोलो. No. It's not about that. It's simply what you have to see is कि वो 0 to pi by 2 से मतलब ही नहीं है. हम लोग को मतलब है कि यहाँ पे क्या है, इस जगह पे क्या है, ये हाफ 0 to pi log sin t dt. I think you are there in the last class and उसके अभी 2 क्लास उसके पहले. तो उसमें मैंने ये चीज बताया था कि अगर मान लो तुम्हारा जो वेरिएबल है ना, बस वेरिएबल की जगह पे हम एक और वेरिएबल रिप्लेस कर रहे हैं. इट्स नथिंग विद इक्वेशन नंबर 1. इस ये स्टेप के बाद हम ये स्टेप लिख रहे हैं ये प्रॉपर्टी लगा करके. इट्स अबाउट दिस स्टेप. इस स्टेप में जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह हम y भी लिख सकते हैं, y dy, z dz, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई एम जस्ट रिप्लेसिंग वेरिएबल विद वेरिएबल, दैट्स ऑल. हाँ बोलो. हम्म. कुछ गलती होगा इसमें. लेकिन तुम्हारा ये क्वेश्चन है तुमसे कि कैसे तुम्हारा आ गया बताओ. तो अगर तुम इसको log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x लिखोगे और तुम 0 to a का प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, अगर सपोज इफ यू अप्लाई 0 to a का प्रॉपर्टी, तो मुझे तो वापस से सेम चीज ही दिख रहा है, मिल रहा है. ओके. क्योंकि अगर हम log sin 2x लिख के 0 to a का प्रॉपर्टी लगाए तो वही आ रहा है, तो अगर हम अलग अलग करेंगे तो भी वही आना चाहिए. तो फिर तो बात बराबर है, हम लोग को यही करना पड़ेगा.
Copy it, everyone. If you have anything to ask, please you can ask. Yes, tell me. तो तुम लोग को ये चीज एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा कि 0 to π/2 log sin 2x dx और 0 to π/2 log sin x dx दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. Now everyone note down the next sum. So the question is 0 to π x log sin x dx. और ये हम लोग को क्या शो करना है? दैट इट इज इक्वल्स टू -π²/2 log 2. ये हम लोग को शो करना है. तो सबसे पहले सबको यहाँ पे ध्यान से बोर्ड पे देखना. ना मेरा तुम लोग से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आज जो जो टॉपिक किया तुम लोग, एक टॉपिक किया एक्स एलिमिनेशन, एक टॉपिक किया 0 to 2 जहाँ पे हम लोग को लिमिट चेंज करना होता है. क्यों चेंज करना होता है? जब हम लोग देखें कि 0 to a का लगाने के बाद प्रॉपर्टी जो रिजल्ट है वापस सेम ही आ रहा है, तो हम लोग यूजुअली लिमिट चेंज करते हैं. तो ये सारा छोटा चीज है जहाँ पे हम लोग करते हैं. तो एक बात बताओ मुझे पहले, इस क्वेश्चन को देख करके तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? बताओ प्लीज रिप्लाई. तो सबसे पहले पहला स्टेप एक्स एलिमिनेट करना है. ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है. So and why are we saying that it is x elimination type? Because if I apply 0 to a property, we are finding that the function fx remains same, because sin pi minus x is equals to what? Sin x itself. So we are finding that, that's why we are saying that it is x elimination type. Change हो जाता तो फिर ये x elimination type नहीं होता. फिर ये क्या होता? बाई पार्ट्स करते और कोई ऑप्शन नहीं बचता. Now let us add both the equations. I plus I becomes 2i. If you add both the functions, log sin x can be taken as common. So what is left? If I take log sin x common, what is left? It is x plus pi minus x. X gets cancelled. So what is left? It is pi. Take pi into log of sin x. Pi को बाहर रख दो इंटीग्रेंट के बाहर. एक और चीज, 2 को हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर में ला सकते हैं. ये पाई बाई 2 हो जाएगी. नेक्स्ट, अब हम वापस से यहाँ पे सोचेंगे 0 to a का प्रॉपर्टी लाने के बारे में सोचेंगे. अप्लाई करने का सोचेंगे, सॉरी. सो इफ आई अप्लाई 0 to a प्रॉपर्टी, कोई फायदा? यस, टेल मी. एनीथिंग, मतलब कोई उससे कुछ चेंज हो रहा है? बताओ तो. 0 to a का प्रॉपर्टी लगा के वापस से नहीं, कुछ नहीं चेंज होगा, बिकॉज वो जो है वैसे ही रह जाएगा. इसका मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि लेट अस चेंज द लिमिट फर्स्ट. इसमें अब हमको लिमिट चेंज करना होगा. तो लिमिट चेंज करने के लिए मैं पाई को 2 into π/2 लिखूंगा. ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा 2, और जो रिजल्ट है इसको नंबर 3 मार्क कर देते हैं. इसके बाद हम लोग इस फंक्शन को थोड़ा, ये लंबा, थोड़ा नहीं, काफी लंबा समय, और हम लोग यहाँ पे जहां पे x है वहां पे 2a minus x सब्स्टिट्यूट कर देंगे.
बिकॉज बिना ये चेक किए हुए हम लोग प्रॉपर्टी लगा ही नहीं सकते. 2 कैंसिल हो गया. साइन पाई माइनस एक्स है साइन एक्स. And this is log sin x, which is f of x. So since f of 2a minus x is equals to plus fx, so I will become 0 to a, 2 आगे आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, and you'll get log of sin x. 2 कैंसिल हो जाएगा, and we have I equals to 0 to pi by 2. आगे पाई है log sin x dx. जब जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद नया इक्वेशन है उसको एक कुछ मार्क कर देना, यहां तक कॉपी करो पहले. डन. मतलब ये सम पूरा डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज में, बाकी सारा सम एक तरफ कर दो, ये एक सम एक तरफ कर दो, बराबर है इतना, ये ऐसा सम है. अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, अप्लाइंग 0 to a f of x dx. मतलब यहाँ पे तुम अगर देखो तो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. So we will get I equals to pi 0 to pi by 2, और जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, pi by 2 minus x. Sin pi by 2 minus x is how much, cos x. Mark it as 5. Add 4 and 5 now. So I plus I will become, इसका भी म्यूट करना, I plus I equals to 2i, बाहर पाई रख लेना. इसके बाद 2 इधर आ गया, पीछे प्लस है तो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, और यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करके 2 sin x cos x को क्या लिखेंगे हम लोग, sin 2x. log of a by b is what, log a minus log b. जहां log 2 आ गया ना, मतलब सोचना सम अब खत्म होने वाला, अब खत्म होने वाला, मतलब अभी भी बाकी है बहुत, अभी भी मतलब कितना परसेंट बाकी है, 40%. अब सुना एक बार, अभी तुम लोग जस्ट इस सब के पहले एक सम किया था, याद करो तुम लोग, देखो एक बार कि 0 to pi by 2 log sin 2x dx. Please everyone note down in your copy, 0 to pi by 2 log sin 2x dx
इज सेम एज 0 to pi by 2 log sin x dx। किया था ना तुम लोग? यस। इसके पहले तुम लोग एक सम किया था अभी, मैंने अलग अलग कर दिया। अब वो पूरा सम को, इसके बाद इसको I1 देखिए, पूरा सम को यहाँ पे करना पड़ेगा कंप्लीट। क्यों करना पड़ेगा पता है? बताने के लिए कि 0 to pi by 2 log sin 2x dx is same as 0 to pi by 2 log sin x dx. Why? Because you have, just a minute, because you have 0 to pi by 2 log sin x dx। अगर हम मान लो इस चीज को अगर हम इसके जैसा ना बना दे, इसको इसके जैसा, तो उस जगह पे क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? I से। एंड द सम इज ओवर। रिपीट वंस अगेन। इसके बाद ये पूरा चीज को अलग से I1 ले लेना, या पाई बाय 2 छोड़ दो, वही रहने दो। इस पूरा चीज को I1 ले लेना और पूरा सम को रिपीट करो जो पहले सम किया था तुमने, देखो एक बार, और रिपीट करके शो करो। अगर शो कर दिया तो इस जगह पे ये लिख देना, लिखने के बाद इससे रिप्लेस कर देना I से। ये इंटीग्रेंड रिपीट कर जाएगा, I से रिप्लेस कर देना, सॉल्व करो, आ जाएगा। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा सम है। आई नो दैट ये सम में बहुत कंफ्यूजन होगा, आई नो दैट, बट अंटिल लेस एक बार तुम लोग खुद से नहीं करेगा नहीं होगा। इसका मैं कोशिश कर, इसका मैं इस सम का सिर्फ एक सम का ही सिर्फ मैं क्या करूंगा, वीडियो सिर्फ इसी सम का एक अलग से स्पेशल वीडियो बना के मैं